Good morning to my dear students. So students, now from today onwards we are going to start with book number 4. तो अभी से हम book number 4 चालू करने वाले हैं. So for EVS book number 4 is this. This is your book number 4. This is the front page. ये आपका book number 4 का front page है और ये आपका book number का बैक पेज लास्ट पेज है. सो ये आपका बुक नंबर का फर्स्ट पेज है और ये आपका बुक नंबर का लास्ट पेज है. ये बुक नंबर जो 4 है ये अभी से हम चालू करने वाले, इसमें से हम पढ़ने वाले हैं. इसमें से अभी हम ईवीएस के लिए वो है प्ले डू और लर्न. ये जो पार्ट है ईवीएस का ये पेज नंबर 73 से चालू होके पेज नंबर 92 तक है. ईवीएस का जो लेसन से टॉपिक है वो पेज नंबर 73 से स्टार्ट होते हैं और पेज नंबर 92 से एंड होती है. दैट इज प्ले डू और लर्न. ईवीएस में 3 पार्ट्स है, प्ले पार्ट, डू पार्ट एंड लर्न पार्ट. सो प्ले पार्ट में कौन से टॉपिक है? सो इन प्ले पार्ट द टॉपिक्स आर स्किल बेस्ड एक्टिविटीज. इन दैट फर्स्ट टॉपिक इज जिम्नास्टिक, सेकेंड टॉपिक इज एथलेटिक गेम, थर्ड टॉपिक इज स्पोर्ट्स स्किल्स, फोर्थ टॉपिक इज ह्यूमन पिरामिड. Then it's in play part second topic is exercise, in which first topic is warm up exercise, second topic is Surya Namaskar, third topic is rhythmic exercise, fourth topic is different body posture, fifth topic is hurdle race. Then in two part there is area of technology where the first part is introduction to computer, where we are going to see about road safety also. Then there is learn part. In learn part the first topic is dance, where we are going to see first topic is different types of movements, then walk, then greeting gesture, after that jump, then dance drama. Afterwards in learn part there is main topic drama, where we are going to see introduction to acting, voice modulation, group presentation, auditorium in my classroom and direction. So these are all the topics that we are going to study in EVS, and that is book number 4. So students, are you ready? Very good. So students, now we will start with our first topic. So kindly remove your EVS combined book page number 74. तो अभी हम चालू करने वाले हमारा नया टॉपिक. सो kindly remove your EVS combined book page number 74. So students, are you ready to start the lecture? Very good. So let's start with a new book, new topic, new lecture. So let's start. The first topic, that is in play part, we are going to see this skill based activity. What is meant by skill based activities? The activities that have been based on all small skills are called as skill based activities. So in skill based activity we are going to learn all small skill based types, like how to roll ourselves, like all exercise, basic exercise. So we are going to learn in this play part. In that we are going to see, in today's lecture we are going to see 2 topics, that is gymnastic and athletics game. In today's lecture we are going to see gymnastic and athletic game. The first topic, that is gymnastic. So what is exactly meaning of gymnastic? Gymnastic यानी क्या? Gymnastic यानी जो एक्सरसाइज, जो वर्कआउट, जो वार्म अप एक्सरसाइज जो हम जिम में करते हैं उसे ही हम जिम्नास्टिक एक्सरसाइज कहते हैं. सो द एक्सरसाइज दैट वी डू इन जिम्स, लाइक वर्कआउट विथ डंपल्स, प्लेट्स एक्सेट्रा, आर नोन एज जिम्नास्टिक एक्सरसाइज. उसमें हम हमारे खुद के बॉडी के लिए भी जो एक्सरसाइज वर्कआउट करते हैं वो भी जिम्नास्टिक में आते हैं, उसे ही हम जिम्नास्टिक कहते हैं. नाउ in your EVS combined book on page number 74 they have given us, observe the picture of front roll gymnastic and number them in their proper order. तो यहाँ पे उन्होंने पिक्चर्स दिए. कौन से पिक्चर्स है? फ्रंट रोल. पहले फ्रंट रोल यानी क्या है? फ्रंट रोल यानी जहाँ पे हम हमारी बॉडी के सहायता से आगे झुक के एक रोल लेते हैं, बॉडी का एक रोल लेते हैं, उसे ही हम फ्रंट रोल कहते हैं. फ्रंट रोल यानी जहाँ पे हम हमारे बॉडी का इस्तेमाल करके हम एक रोल लेते हैं, बॉडी के सहायता से एक रोल लेते हैं, उसे ही हम फ्रंट रोल कहते हैं. जैसे कि यहाँ पे उन्होंने पिक्चर दिखाया है,
यहाँ पे उन्होंने 5 पिक्चर दिए, यहाँ पे हमें वो 5 पिक्चर अरेंज करने के लिए बोले, तो पहले हम वो अरेंज करेंगे, फिर बाद में मैं आपको एक एक स्टेप बताने वाली हूँ फ्रंट रोल किस प्रकार किया जाता है। सो इन फर्स्ट पिक्चर यू कैन सी द बॉय इज बेंडिंग डाउन विथ हेल्प ऑफ हिज हैंड। तो यहाँ फर्स्ट पिक्चर में आपको दिख रहा है कि वो अपने हाथों का सपोर्ट लेके पूरा बेंड होके उसने पैरों को सीधा रखा है। फिर सेकंड में वो पूरा झुक गया है, थर्ड में वो बैठा हुआ है, फोर्थ में वो फिर से झुका हुआ है और फिफ्थ में वो फिर से बैठा हुआ है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पिक्चर सीक्वेंस में आएगा वो है थर्ड पिक्चर। थर्ड पिक्चर यानी वो जो लड़का है वो प्रिपेयर है फ्रंट रोल करने के लिए। सो फर्स्ट पिक्चर, थर्ड पिक्चर, इसको हम फर्स्ट सीक्वेंस में डालेंगे। फिर सेकेंड वाला कौन सा आएगा, जो पहले है, जहाँ पे वो लड़के ने अपने हाथों का इस्तेमाल करके गर्दन नीचे करके पैरों को सीधा रखा है, वो सेकेंड आएगा। फिर थर्ड कौन सा आएगा, जो फोर्थ पिक्चर पे है, जहाँ पे उसने अपने बैक पे अपने सपोर्ट लिया है और पैरों को अपने एल्बो तक ज्वाइन किया है, वो थर्ड सीक्वेंस में आएगा। फोर्थ सीक्वेंस में जो सेकंड पिक्चर है, जहाँ पे वो अपने बैक पर लेटा हुआ है और अपने पैर और हाथ ऊपर किए हैं, और जो लास्ट पिक्चर है वो फिफ्थ पोजीशन में आएगा, जहाँ पे वो फिर से सीधे पोजीशन में आ रहा है। सो फर्स्ट पोजीशन कौन सी है, जो थर्ड पिक्चर है वो। सेकंड पोजीशन कौन सी है, जो फर्स्ट पिक्चर है वो। थर्ड पोजीशन कौन सी है, जो फोर्थ पिक्चर है वो। फोर्थ पोजीशन कौन सी है, जो सेकंड पिक्चर है वो। और फिफ्थ पोजीशन कौन सी है, जो फिफ्थ पिक्चर है वो। सो यू विल कंप्लीट दिस ऑल सीक्वेंस, यू विल राइट ऑल द प्रॉपर सीक्वेंस इन द प्रोवाइडेड सर्कल बिलो द पिक्चर। जो पिक्चर के नीचे सर्कल दिया है उसके अंदर ही आपको जो सीक्वेंस है वो लिखना है, जैसे मैंने लिखा है आपको भी वैसे ही कंप्लीट करना है। सो दिस इज द सीक्वेंस ऑफ फ्रंट रोल विच इज अ पार्ट ऑफ जिम्नास्टिक। Okay. Now the second one, that is observe the picture of the back roll gymnastic and circle the wrong position. तो यहाँ पे उन्होंने बैक रोल का हमें पिक्चर्स दिया है। बैक रोल यानी जिस प्रकार हम फ्रंट रोल करते हैं उसका उल्टा हम बैक रोल करते हैं। जैसे कि अभी फ्रंट रोल में हम सीधे खड़े रहते हैं, बैक रोल में हम उल्टा खड़ा रहेंगे, फिर हाथों को पीछे लेके, हाथों का सपोर्ट लेके हम हमारे बॉडी का रोल लेंगे, उसको ही हम बैक रोल कहते हैं। जैसे कि ये पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है कि जो फर्स्ट पोजीशन है वो बैक रोल का है, जहाँ पे वो रेडी है। सेकेंड पोजीशन में वो रोल ले रहा है। थर्ड पोजीशन ये बैक रोल का नहीं है, ये फ्रंट रोल का है। तो यहाँ पे आप सर्कल करोगे क्योंकि वो रॉन्ग पोजीशन है, तो थर्ड पिक्चर को आप सर्कल करोगे। फिर जो फोर्थ पोजीशन है उसमें आपको दिख रहा है कि वो लड़के ने हाथों का सपोर्ट लेके अपने पैरों को ऊपर किया हुआ है, और फिफ्थ पोजीशन में वो फिर से झुक रहा है। सो यहाँ पे जो रॉन्ग पोजीशन है वो थर्ड पोजीशन है, तो आप थर्ड पोजीशन पे सर्कल करने वाले, क्योंकि जो थर्ड पोजीशन उन्होंने दी है वो रॉन्ग पोजीशन है और वो फ्रंट रोल की पोजीशन है। सो यू विल सर्कल थर्ड पोजीशन। तो ये जो पिक्चर्स थे ये बैक रोल के पिक्चर्स थे, उसमें से हमें जो रॉन्ग पिक्चर दिया था वो एक फ्रंट रोल था, जो फ्रंट रोल का एक पिक्चर था। सो यू विल सर्कल दैट थर्ड पिक्चर। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, the third one is write F for the position below to the front roll and B for the position below to back roll. तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि आपको जो फ्रंट रोल है उसको F लिखना है और जो बैक रोल है उसको B लिखना है। जैसे कि यहाँ पे आप अभी आपने देखा फ्रंट रोल के कौन से प्रॉपर जेस्चर है और बैक रोल के कौन से प्रॉपर जेस्चर है। तो यहाँ पे आपको जो फ्रंट रोल है उसको F लिखना है और जो बैक रोल है उसको B लिखना है। सो द फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ बैक रोल, सो यहाँ पे आप B लिखोगे। सेकेंड पिक्चर इज ऑफ फ्रंट रोल, तो यहाँ पे आप F लिखोगे। थर्ड पिक्चर इज ऑफ बैक रोल, तो यहाँ पे B लिखोगे। फोर्थ पिक्चर इज ऑफ फ्रंट रोल, तो यहाँ पे आप F लिखोगे। फिफ्थ पिक्चर इज ऑफ बैक रोल, तो यहाँ पे B लिखोगे। सिक्स पिक्चर इज ऑफ फ्रंट रोल, तो यहाँ पे आप F लिखोगे। उसके बाद वाला सेवन पिक्चर है बैक वाला, तो यहाँ पे आप B लिखोगे। 8 पिक्चर है फ्रंट रोल, तो यहाँ पे F लिखोगे। 9 पिक्चर है बैक वाला, तो यहाँ पे B लिखोगे। और लास्ट पिक्चर है फ्रंट का, तो यहाँ पे F लिखोगे। तो यहाँ पे आपको जो पिक्चर्स के नीचे सर्कल दिया है, यहाँ पे आपको अगर वो फ्रंट रोल हो तो F लिखना है, अगर वो बैक रोल है तो आपको B लिखना है। सो फर्स्ट पिक्चर जो है बैक रोल है, सेकेंड पिक्चर है फ्रंट रोल, थर्ड पिक्चर बैक रोल, फोर्थ पिक्चर फ्रंट रोल, फिफ्थ पिक्चर बैक रोल, सिक्स पिक्चर फ्रंट रोल, सेवन पिक्चर बैक रोल, 8 पिक्चर फ्रंट रोल, 9 पिक्चर बैक रोल एंड 10 पिक्चर फ्रंट रोल। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, वैसे ही आपको आपकी ईवीएस के कंबाइन बुक में पेज नंबर 74 पे लिखना है। जो बैक पिक्चर है वहाँ पे आपको B लिखना है और जो
फ्रंट पिक्चर है, फ्रंट रोल है, उसको आपको एफ लिखना है, जैसे मैंने लिखा है बी और एफ। वैसे ही हर एक पिक्चर के नीचे आपको वो पिक्चर केयरफुली ऑब्जर्व करना है, और उसके नीचे अगर वो बैक रोल है तो बी लिखना है, फ्रंट रोल है तो आपको एफ लिखना है। सो यू विल कंप्लीट दिस। लेट्स मूव फर्दर। नाउ स्टूडेंट्स, इन योर ईवीएस कंबाइन बुक ऑन पेज नंबर 75 दे हैव गिवन अस एन एक्टिविटी। अभी आपके ईवीएस कंबाइन बुक के पेज नंबर 75 पे उन्होंने एक एक्टिविटी दी है। वो एक्टिविटी में उन्होंने क्या बोला है, स्प्रेड योर लेग्स एंड रोल फॉरवर्ड बाय मेंटेनिंग अ प्रॉपर बॉडी बैलेंस, परफॉर्म्स अ कार्टव्हील एक्टिविटी अंडर द गाइडेंस ऑफ योर टीचर्स ड्यूरिंग फिजिकल एजुकेशन क्लास। तो यहाँ पे अभी हम ऑनलाइन क्लासेस तो नहीं ले सकते, तो ये एक्टिविटी अगर आपको ट्राई करनी है तो आप घर पे ट्राई कर सकते हो, पर अगर नहीं जम रहा है तो आप प्लीज मत ट्राई कीजिए। अगर आपको आता है तो आप पेरेंट्स के हेल्प से वो एक्सरसाइज करने वाले। तो यहाँ पे एक्टिविटी क्या बोले, आपको क्या बोला है, स्प्रेड योर लेग्स एंड रोल फॉरवर्ड। तो यहाँ पे आपको आपके लेग्स को स्प्रेड करना है, यानी साइड में स्प्रेड करना है, रोल करना है, जैसे वो बच्चा कर रहा है। अपने दोनों पैरों को उसने साइड में रखा है और वो अपने हाथों को नीचे झुका के एक रोल करने वाला है, कार्टव्हील टाइप करने वाला है। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है बाय मेंटेनिंग अ प्रॉपर बॉडी बैलेंस, आपको पहले आपके बॉडी का बैलेंस मेंटेन करना है। फर्स्ट यू हैव टू मेंटेन योर बॉडी बैलेंस। बॉडी बैलेंस मेंटेन करने के बाद परफॉर्म अ कार्टव्हील एक्टिविटी अंडर द गाइडेंस ऑफ योर टीचर। तो अंडर गाइडेंस ऑफ योर टीचर यानी मेरे गाइडेंस पे ही आपको करना है। अगर आपको आता है तो ही करो, वरना मत कीजिए। तो आपको एक कार्टव्हील परफॉर्म करना है। सो दिस इज अ एक्टिविटी यू कैन ट्राई एट योर होम, बट व्हेन यू आर गोइंग टू ट्राई जस्ट टेक हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स। आप अकेले मत ट्राई कीजिए, आपके पेरेंट्स की हेल्प लीजिए। सो यू विल ट्राई दिस एक्टिविटी एट योर home. So this is just an activity, so you will do it at your home. Okay, now let's start with a next topic, that is athletics games. What is exactly meanings of athletics games? Athletics games यानी क्या? एथलेटिक्स गेम यानी जहाँ पे अलग अलग प्रकार के गेम्स को खेला जाता है, जैसे जंपिंग, रनिंग, होपिंग, देन डिस्कस थ्रो, रिले रेस एक्सेट्रा। ये सब एथलेटिक्स गेम्स है। ये सब कौन से गेम्स है? एथलेटिक्स गेम्स। इसे ही हम एथलेटिक्स गेम्स कहते हैं। तो यहाँ पे अभी उन्होंने आपकी ईवीएस कंबाइंड बुक में दिया है, परफॉर्म दिस एक्टिविटी ड्यूरिंग योर फिजिकल एजुकेशन क्लास। तो ये एक्टिविटीज आपके पीटी लेक्चर में करने के लिए बोला है। सो यहाँ पे कौन से गेम्स दिए? जंपिंग एंड मूविंग फॉरवर्ड, होपिंग फॉरवर्ड ऑन द लेक, स्टॉप जंपिंग, स्पॉट जंपिंग, सॉरी, जंपिंग विथ स्ट्रेच हैंड, 3 लेग रेस। तो जंपिंग एंड मूविंग फॉरवर्ड यानी क्या? तो यहाँ पे आपको जंप करना है और आगे बढ़ना है। जंपिंग एंड मूविंग फॉरवर्ड ये जो गेम है, यहाँ पे आपको क्या करना है? तो यहाँ पे आपको जंप करना है, यहाँ पे आपको उछलना है और आगे बढ़ते जाना है। यू हैव टू जंप एंड मूव फॉरवर्ड, इसको ही हम जंपिंग एंड मूविंग फॉरवर्ड कहते हैं। जंपिंग एंड मूविंग फॉरवर्ड में क्या करना है? यहाँ पे आपको जंप करना है, आपकी खुद की बॉडी को लिफ्ट करके जंप करना है। जंप करने के बाद आपको आगे चलना है। आपको चल के, नॉर्मल चल के नहीं आगे जाना है, आपको जंप करके ही आगे जाना है। उसे हम कहते हैं जंपिंग एंड मूविंग फॉरवर्ड। ओके, फिर सेकेंड गेम कौन सा है? होपिंग फॉरवर्ड 1 लेग। होपिंग यानी क्या? तो यहाँ पे आपको एक लेग को ऊपर रख के आपको चलना है, जैसे इसको लंगड़ी भी कह सकते हैं। तो उसको ही हम होपिंग फॉरवर्ड ऑन 1 लेग। यहाँ पे आपको आपके एक पैर को ऊपर लेना है और एक पैर को नीचे ही रख के उसके हेल्प से आपको आगे जाना है। इसको हम अलग लैंग्वेज में कहने चाहेंगे तो उसको लंगड़ी भी कहते हैं। ये गेम का नाम है होपिंग फॉरवर्ड ऑन 1 लेग। उसके बाद है स्पॉट जंपिंग। स्पॉट जंपिंग यानी जहाँ पे आप खड़े हो वहाँ पे ही आपको जंप करना है, यहाँ पे आपको रुकना नहीं। स्पॉट यानी ऑन द स्पॉट, जहाँ पे है वहाँ पे आपको जंप करते रहना है, उसको ही हम स्पॉट जंपिंग कहते हैं। जैसे पिक्चर में दिखाई दे रहा है, एक लड़की जिस जगह पे खड़ी है वहाँ पे ही वो जंप कर रही है, उसको ही हम स्पॉट जंपिंग कहते हैं। सो दिस इज द गेम विच इज नोन एज स्पॉट जंपिंग, वेयर वी जंप ऑन अ पर्टिकुलर प्लेस ओनली। उसके बाद है जंपिंग विथ स्ट्रेच हैंड। तो यहाँ पे आपको जंप करते समय आपके हाथों को स्ट्रेच करना है, साइड में स्ट्रेच करना है। जैसे इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहे जो लड़कियां हैं वो अपनी जगह पे जंप कर रही है और अपने दोनों हाथ को स्ट्रेच कर रही है साइड में, उसको ही हम कहते हैं जंपिंग विथ स्ट्रेचिंग हैंड। सो दिस इज द गेम वेयर वी जंप एंड वी स्ट्रेच आवर बोथ हैंड। सो दिस इज द गेम नोन एज जंपिंग विथ स्ट्रेचिंग हैंड्स। ओके, द लास्ट गेम दे हैव गिवन इज 3 लेग रेस। 3 लेग रेस यानी क्या? तो ये जो रेस रहती है ये पार्टनर्स में खेली जाती है, पार्टनर्स में खेली जाती है।
यहाँ पे दो पार्टनर्स रहते हैं और दोनों पार्टनर्स के एक एक पैर को रस्सी बांधी जाती है। यानी अगर जो फर्स्ट पार्टनर है अगर उसके लेफ्ट लेग को रस्सी बांधी है तो सेकेंड पार्टनर के राइट लेग को रस्सी बांधी होती है। दोनों के पैर को ज्वाइन करके वो रस्सी बांधी जाती है, जैसे वो पिक्चर्स में आपको दिखाई दे रहा है। वो रस्सी बांधने के बाद क्या करते हैं, वो रस्सी बांधने के बाद वो दोनों पार्टनर्स अपने कंधों, दोनों एक दूसरे के कंधों पे हाथ रख के है और फिर आगे दौड़ना चालू करते हैं। तो आगे दौड़ते समय उन दोनों को ध्यान में रखना चाहिए कि दोनों के पैर सेम पड़ने चाहिए। अगर एक दूसरे का पैर आगे पीछे हुआ तो वो गिर जाएंगे। तो ये रेस में दोनों का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। सो दिस इज द रेस नोन एज 3 लेग रेस, यू कैन सी इन द पिक्चर। तो यहाँ पे दो लड़कों का पैरों को रस्सी बांधी है और वो दोनों ने अपने शोल्डर का सपोर्ट लेके वो दोनों सीधे बराबर कोऑर्डिनेशन करके चल रहे हैं। सो दिस इज द गेम नोन एज 3 लेग रेस। सो यहाँ पे हमने कौन से गेम्स देखे, तो यहाँ पे हमने जंपिंग एंड मूविंग फॉरवर्ड गेम्स देखा जहाँ पे हम जंप करके आगे बढ़ते हैं। फिर हॉपिंग फॉरवर्ड ऑन 1 लेग देखा जहाँ पे हम एक पैरों का नीचे रख के एक पैरों को ऊपर रख के हम आगे बढ़ते हैं, जिसको हम लंगड़ी भी कहते हैं। फिर थर्ड गेम में हमने स्पॉट जंपिंग देखा जहाँ पे हम पर्टिकुलर प्लेस पे खड़े रह के जंप करते हैं। फिर फोर्थ पिक्चर में हमने जंपिंग एंड स्ट्रेचिंग हैंड देखा जहाँ पे हम जंप करके हमारे दोनों हाथ को स्ट्रेच करते हैं। और लास्ट पिक्चर में हमने देखा 3 लेग रेस जहाँ पे हम ये गेम पार्टनर्स में खेलते हैं। दोनों पार्टनर के पैरों को रस्सी बांधी रहती है और हम दोनों एक साथ कोऑर्डिनेट करके चलते हैं, उसको ही हम 3 लेग रेस कहते हैं। सो दिस आर ऑल 5 टाइप्स ऑफ गेम्स विच कम अंडर एथलेटिक्स गेम्स। ओके, अभी उसके नीचे उन्होंने बोला है पुट अ टिक इन द बॉक्स आफ्टर प्रैक्टिसिंग। ये आपको प्रैक्टिस करना है, घर पे प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने के बाद आपको जो जो गेम आप प्रैक्टिस करें उसके आगे जो बॉक्स है उधर टिक मार्क करना है। अगर आपने होपिंग फॉरवर्ड गेम प्रैक्टिस किया घर पे तो उसके सामने टिक मार्क करना है। अगर आपने वॉकिंग विथ लॉन्ग स्टेप किया तो उसके सामने आपको टिक मार्क करना है। अगर आपने जंपिंग विथ स्ट्रेचिंग हैंड किया तो उसके सामने आपको टिक मार्क करना है। अगर आपने स्पॉट जंपिंग किया तो उसके सामने आपको टिक मार्क करना है। तो ये जो गेम्स है आपको घर पे ट्राई करने के बाद वो जो बॉक्स प्रोवाइड किया उसके सामने आपको टिक करना है। ओके students, now let us revise what we have learned in today's lecture. So in today's lecture we have saw about skill based activity where we have saw about gymnastic, where we have saw about front roll, then we have saw about back roll, then we have done an activity where we have identified the particular posture and we have wrote for F for front roll and B for back roll. Then we have done an activity where we have spread our leg and roll forward, where we have perform a cartwheel. Then we have saw about next topic, that was athletics games, where we have saw jumping and moving forward game, hopping forward on 1 leg, spot jumping, jumping with stretch hand and 3 leg race. Then we have put a tick in the box after practicing all these games like hopping forward, walking with long steps, jumping with stretch hand and spot jumping. So I hope you have understood this 2 topic. Okay. Now students, it's a homework time. अभी आपको homework. So you will complete your EVS combined book page number 74 and 75. तो आप अपनी EVS combined book का पेज नंबर जो 74 है वो कंप्लीट करने वाले हैं और पेज नंबर 75 कंप्लीट करने वाले। ये 2 पेज कंप्लीट करने के बाद आपको ये दोनों पेज का फोटो खींचना है और मुझे भेजना है। यह होमवर्क होने के बाद सेकंड होमवर्क है आपको आपकी EVS के नोटबुक में करना है। किधर करना है? आपकी EVS के नोटबुक में। आपकी EVS के नोटबुक में आपको जो अभी मैं नोट्स देने वाली हूँ वो आपको कंप्लीट करने हैं। सो ये जो नोट्स है ये जिम्नास्टिक एंड एथलेटिक्स गेम्स के ऊपर नोट्स है। तो ये जो नोट्स मैं अभी देने वाली हूँ ये नोट्स आपको आपकी EVS के नोटबुक में कंप्लीट करने हैं। किधर? EVS के नोटबुक में। सो द नोट्स आर एज फॉलो। जिम्नास्टिक एंड एथलेटिक्स गेम, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स। सो यहाँ पे मैंने 7 वर्ड्स दिए वो आपको आपकी EVS के नोटबुक में लिखने हैं। फर्स्ट वर्ड इज जिम्नास्टिक, JYMNASTICS, जिम्नास्टिक, JYMNASTICS, जिम्नास्टिक। सेकेंड वर्ड इज एथलेटिक्स, ATHLETICS, ATHLETICS, एथलेटिक्स। उसके बाद है फ्रंट रोल, FRONT, फ्रंट ROLL, रोल, FRONT, फ्रंट ROLL, रोल। फोर्थ वन है बैक रोल, BACK, बैक ROLL, रोल, BACK, बैक ROLL, रोल। फिफ्थ वन इज posture, POSITION, 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 position. Fifth word is position, POSITION, position.
Sixth word is hoping. HOPPING, hoping. HOPPING, hoping. Seventh word is jumping. JUMPING, jumping. JUMPING, jumping. तो ये 7 वर्ड आपको कंप्लीट करने में फिर से 7 वर्ड्स रिपीट कर रही हूँ. फर्स्ट वर्ड इज जिम्नास्टिक. JYMNASTICS, जिम्नास्टिक्स. सेकेंड वर्ड इज एथलेटिक्स. ATHLETICS, एथलेटिक्स. थर्ड वर्ड इज फ्रंट रोल. FRONT, फ्रंट. ROLL, रोल. फोर्थ वर्ड इज बैक रोल. BACK, ROLL, रोल. फिफ्थ वन इज position, POSITION, position. Sixth one is hoping, HOPPING, hoping. And seventh one is jumping, JUMPING, jumping. यह होमवर्क कंप्लीट होने के बाद इसका भी आपको फोटो खींचना है और मुझे भेजना है. तो टोटल आपका होमवर्क क्या है, आपको आपके ईवीएस के कंबाइंड बुक का पेज नंबर 74 और 75 कंप्लीट करना है. उसके बाद ईवीएस के नोटबुक में आपको ये जो नोट्स मैंने दिए हैं वो आपको कंप्लीट करना है. ये कंप्लीट होने के बाद इस सब का फोटो खींचना है और मुझे भेजना है. सो आई होप यू विल कंप्लीट इट. सो स्टूडेंट्स, थैंक यू.